Good morning, everyone. Let's start our class. I welcome you all. Children, in our previous class, we discussed what is sentence and also several kinds of sentence and examples. Now, in this class, we have some sentences written on the board, and your task is that you have to identify the kinds of sentence here. Actually, I haven't put full stop and question mark here. So you have to identify it with its meaning, with its sense. Let's read the first sentence. With me, you all will also read it and try to understand whether it is assertive, other name declarative, whether it is interrogative, it is exclamatory or imperative. The first sentence. Naveen went to the airport to drop his mother. Naveen went to airport to drop his mother. You have to tell me which kind of sentence is it out of 4. We are not asking any question, so it is not interrogative. We are not giving orders, we are not requesting anything, so it is not imperative. And we are not exclaiming anything, we are not showing sudden feeling of our heart, so it is not exclamatory. It starts with a noun, then a verb, and then other things. So it is a simple statement that Naveen went to the airport to drop his mother. It is a simple statement. We are very simply showing an incident. We are very simply showing a fact. We are telling a statement. So this is simple assertive sentence, and it should be end with full stop. And this is assertive. For assertive, we write only A here. Number 2. How delicious the food is. How delicious the food is. When we read the sentence, we understand that we are exclaiming, we are showing our internal feelings, sudden feelings. हमने food को देखा और हमारे मन में एक विचार आया कि अरे हमने उसको खाया, चख कर देखा, टेस्ट किया और विचार आया कितना स्वादिष्ट फूड है. हाउ डिलीशियस. इस हाउ को आप इंट्रोगेटिव नहीं समझेंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जब भी कभी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इस ऑक्सिलरी वर्ब को यहीं पर लिखते हैं, जो कि यहाँ नहीं है, लास्ट में है. ठीक है, तो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हाँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ हाउ और व्हाट क्वेश्चन वर्ड्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे, बट दे आर नॉट क्वेश्चन वर्ड्स. दे जस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी. वो सिर्फ क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितना डिलीशियस है. हाउ डिलीशियस, उसकी एक्सटेंट को दिखाते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं. हाउ डिलीशियस द फूड इज. और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी में आपको ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ लास्ट में दिखाई देती है. सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड पुट एक्सक्लेमेशन मार्क हियर. नेक्स्ट, आर यू मूविंग इनटू योर न्यू हाउस. व्हेन वी रीड दिस सेंटेंस, we get a sense, we think that someone is asking us something, and also यहाँ पर कोई हमसे कुछ पूछ रहा है. इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि ये सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और उसके जस्ट बाद एक नाउन लिखी है, सॉरी प्रोनाउन यहाँ लिखा हुआ है. दिस इज प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन. तो व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट हैज अ नाउन और प्रोनाउन जस्ट आफ्टर इट, ठीक है, इट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड वी राइट क्वेश्चन मार्क हियर. ओके, also we have helping verb
noun pronoun and then a action word, or you can say main verb. So this is the structure of identifying interrogative sentence. We are asking some questions. Next, number D, go to your room. Go to your room. So when we say go to your room, what does it mean? What does it mean? We are ordering someone. We are ordering someone, or we are just telling someone to do some work. Okay. Also, this sentence starts with main verb go. When a sentence starts with main verb, or you can say action word, and it represents a sense of order, request, suggestion, advice, command, it is known as imperative sentence. It is known as imperative sentence and also has a full stop. तो यहाँ हम लिखेंगे imperative I am, ये interrogative था, यहाँ लिखिए I N, और ये exclamatory था, यहाँ पर लिखिए EX. Okay. Next we have, is there any milk left in the bottle? I hope that you have understood this sentence, the kind of this sentence. It starts with helping verb, and a noun phrase. ये noun है, there any milk, ये milk क्या है, noun है. तो और यहाँ पर ये left क्या है, main verb है, this is main verb. तो when we have helping verb, noun or noun phrase या pronoun or main verb, it represents an interrogative sentence. So we put here question mark and we write here IN interrogative. Okay, understood? And this last, walk straight, सीधे चलो. We are telling someone, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, भाई सीधे चलो, या किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सीधे चलो. तो स्टार्टिंग विद मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वॉक स्ट्रेट. दिस इज imperative sentence and we write here I am. Okay, we write here I am. So these are the kinds of sentences I have explained before you, and you children have to read them very carefully and do some more exercise from your books and wherever you find these sentences. Okay, now we shall discuss how to change affirmative sentence into negative, how to change negative into affirmative, how to change interrogative into positive, how to change positive into interrogative. Means we will now understand. So children, now we have to understand transformation of sentence. Transformation of sentence means how to change affirmative to negative and how to change affirmative to interrogative and negative to interrogative. Okay, it's a very simple process, and for which first of all you have to understand the actual formation of sentence. आपको समझना पड़ेगा कि sentence की actual formation क्या होती है. देखिए, we have assertive sentence which is also known as declarative sentence. असर्टिव सेंटेंस का अदर नेम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है और इसी को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं. दिस इज इटसेल्फ इज नोन एज स्टेटमेंट. ओके, ये तो हो गए एक ही चीज के तीन नाम. ठीक है, नाउ दे आर ऑफ टू काइंड्स. अब ये दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है अफर्मेटिव, जहां पर हम एक सिंपल सी बात बताते हैं. दूसरा होता है निगेटिव, यहां हम एक निगेटिव वर्ड नॉट को यूज कर देते हैं. ठीक है, तो ये निगेटिव बन जाता है. चिल्ड्रन, अफर्मेटिव ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव. अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव भी कहते हैं और ये आपका निगेटिव है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ये है कि इसको हम कैसे प्लेस करते हैं. इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो किस ऑर्डर पे रखी होती हैं. तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है किसी भी सेंटेंस का बेसिक पार्ट होता है, बेसिक सेंटेंस होता है. तो ये स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स anything we talk about in a sentence is called subject. Or another example, anything
थिंग दैट परफॉर्म्स एनी एक्शन, कोई ऐसा जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है इज कॉल्ड सब्जेक्ट. लाइक आई एम टीचिंग यू, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे बारे में आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया. एंड आई एम टीचिंग यू, टीचिंग कौन कर रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया. तो आई सब्जेक्ट होता है. ये एक्चुअली बेसिकली नाउन और प्रोनाउन से बनता है. इसके प्लेस पर नाउन्स आते हैं और प्रोनाउंस आते हैं. नेक्स्ट वी हैव हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब. is, am, are, was, were, has, have, do, does, may, might, can, could, must or to. These are known as helping verb or auxiliary verb. So second place होता है auxiliary verb का, ध्यान रखिएगा हमेशा. Next we have main verb. What is main verb? All the action words, ऐसे words, such words that show action are known as action words or main verb. Like teach, jump, laugh, sleep, rise, awake. These are known as main verb and action words. Next we have object. What is object? The receiver of action is called object. The receiver of action is called object. And how to identify object in a sentence? तो बेटा क्वेश्चन मेन वर्ब से पहले ये दो क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं what and whom, इसको ऐड कर दीजिए. जैसे I am teaching you, whom I am teaching? You. तो you is object. मैंने क्वेश्चन वर्ड whom लगाया अपने टीचिंग एक्शन वर्ड से पहले, तो मुझको आंसर मिला you, और you आपका ऑब्जेक्ट हो गया. फिर I am teaching English. What am I teaching? English. So English ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पर हम we use question word what and whom to get our object. और किसी किसी सेंटेंस में जहाँ पर आपको what और whom का आंसर नहीं मिलता है, इसका मतलब वहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं. एंड अवर लास्ट पार्ट इज अदर वर्ड. अदर वर्ड में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, किसी कोई टाइम एक्सप्रेशन या सम अदर थिंग. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. क्लियर? नाउ हाउ टू चेंज दिस अफर्मेटिव इनटू पॉजिटिव, इनटू नेगेटिव. नेगेटिव, एवरीथिंग इज सेम. एवरीथिंग इज सेम इन दिस स्ट्रक्चर रादर देन वन थिंग, नॉट. हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद वी जस्ट प्लेस अ नेगेटिव वर्ड नॉट हियर. इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे लाते हैं बीच में, एडजस्ट कर देते हैं, तो ये नेगेटिव बन जाता है. दिस नेगेटिव वर्ड नॉट मेक्स दिस सेंटेंस, दिस अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव. ये नॉट आया, अफर्मेटिव नेगेटिव बन गया, और बाकी सब सेम है. इज इट ईजी? इजंट इट ईजी? क्या ये सरल नहीं है? इट इज ईजी, इट्स वेरी सिंपल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Now let's see how to change this affirmative into interrogative, this negative into interrogative. We have now interrogative. First of all, we look forward from positive sentence कि हम positive sentence से कैसे change करेंगे interrogative में. कुछ नहीं करना आपको, it's very simple. ये जो helping verb आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको just pick up एंड प्लेस बिफोर सब्जेक्ट. यहाँ से उठाइए और सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए. द सेंटेंस बिकम्स इंट्रोगेटिव. देखो हेल्पिंग वर्ब वहाँ थी, मैं आगे ले आया. सेम सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड. सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सब सेम है. एवरीथिंग इज सेम रादर देन हेल्पिंग वर्ब. इसको मैं आगे ले आया, ये बन गया मेरा इंट्रोगेटिव. लेकिन क्या हो, वेयर व्हाट इफ यू हैव टू चेंज नेगेटिव इनटू इंट्रोगेटिव. अगर आपको नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव लेकर आना है. अगेन सेम प्रोसेस, जस्ट लीव एनीथिंग, लीव एवरीथिंग एंड पिक अप हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेस बिफोर सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब को पिकअप कीजिए, उठाइए और सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए. एवरीथिंग रिमेन सेम और लेट एवरीथिंग रिमेन सेम. सबको एक जैसा रहने दीजिए से पहले थे. बन गया हमारा इंट्रोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. कुछ इंट्रोगेटिव ऐसे होते हैं जिसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करते. जैसे व्हाट इज़ योर, जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो, यहाँ पर हमने नेगेटिव का यूज़ नहीं किया है. और फिर मैं पूछ सकता हूँ आर यू नॉट एन स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट नहीं हो, तो वहाँ पर नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया. तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एंड इट इज़ सिंपल. और मुझे आशा है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. कोई प्रॉब्लम है तो यू जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन. ओके, नाउ वी विल फर्दर discuss examples of these transformation of sentence, and till then just
read carefully and study carefully.